الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ العلامة الفقيه المحدث المفتي محمد إلياس حفظكم الله من كل سوء، ونفعنا بعلومكم وفيوضكم آمين. حدثكم فضيلة الشيخ العلامة الفقيه المحدث وأستاذ العلماء مولانا سليم الله خان رحمه الله، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين وشيخ العرب والعجم مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا سيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتوي رحمه الله، والشيخ الفقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الجنجوهي رحمه الله، عن الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله، عن الشهير في الآفاق الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله، وعن مرجع الأسانيد الشيخ شاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله أحمد الدهلوي رحمه الله، وهو عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد عبد السميع بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد بن يونس القشاوي رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي رحمه الله، عن الشيخ أحمد علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الترنوخي رحمه الله، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله، عن الشيخ سراج الدين حسين بن مبارك الزبيدي رحمه الله، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي رحمه الله، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد بن داودي رحمه الله، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري رحمه الله، عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى، اللهم ونفعنا بعلومهم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अभी अज़ीज़ तालिब इल्म ने आपके सामने असहुल कुतुबि बाद किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस और उसका बाब ऐसी सनद मुत्तसिल के साथ पढ़ा जो हमसे लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऐसा सिलसिलतुज़्ज़हब, ऐसे हर ज़माने के काबिल तरीन मुहद्दिसीन पर मुश्तमिल है कि वो अपने ज़माने का न सिर्फ़ मुहद्दिस था, न सिर्फ़ एक बहुत नेक इंसान था, बल्कि बहुत ज़्यादा उसको अल्लाह ने इल्म हदीस का नूर भी अता फ़रमाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज बहुत खुशी है और हम सब को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का दर्स सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि कुरान कह रहा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि उस नबी की कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं होती, वो एक वही होती है अल्लाह की तरफ से। कुरान भी वही है, लेकिन वो वही मतलू है, उसकी तिलावत की जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी वही है, लेकिन वो गैर मतलू है, उसकी तिलावत नहीं की जाती। ये अहादीस नबविया हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का कौल है, लौला सुन्ना लमा फ़हीमल कुरान अहद, अगर ये न होती तो कोई शख्स कुरान को नहीं समझ सकता था। हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह ने फरमाया, जमीउ मा तक़ूलुल अइम्मा शरहुन लिस्सुन्ना, ये जो फ़िक़्ह हम पढ़ते हैं, ये जो फ़िक़्ह है ये असल में हदीस की शरह है। व जमीउ मा तक़ूलुस्सुन्ना शरहुन लिलकुरान, और ये जितनी अहादीस है ये कुरान पाक की शरह है। हज़रत अल्लामा यूसुफ बनूरी रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि ये कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब ही ऐसी बनाई है कि ये भी अहादीस की तायीद करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल की तायीद करता है। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अज़ीम इल्म हदीस के पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। और ये इतना अजीम मनसब है अल्लाह के नबी के अहादीस का सुनना, इसका पढ़ना, इसको याद करने की कोशिश करना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बाज़ाब्ता हम आलिम बने। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल का अरसा हुआ, हमने ईशा की नमाज के मुत्तसिल बाद आवाम में भी 3 से 4 मिनट का दर्स बुखारी शरीफ शुरू किया है। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम हर घर में होती है, हर मस्जिद में होती है। जो हदीस हमारे कानों में पहुँचे, अगर हमने उसको याद कर लिया, उसको महफूज कर लिया, उसको आगे पहुँचाने की कोशिश कर ली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिल जाएगी। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रावी हैं, नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, अल्लाह उस शख्स को तरो ताज़ा रखे। अल्लाह के नबी जिसके लिए दुआ दे दें तरो ताजगी की, खुशगवार जिंदगी की, कौन? जो मेरी अहादीस को सुने, उसको याद करे, उसको महफूज करे और आगे जैसे सुनी है उसी तरह पहुंचाने की कोशिश करे। एक और रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हैं, आप अलैहिस्सलाम के हाथ उठ गए एक दफ़ा, अल्लाहुम्मा अर्हम खुलफ़ाई, कि अल्लाह मेरे खुलफ़ा पर रहम फरमा। क़ील मन खुलफ़ाउका या रसूल अल्लाह, आपसे पूछा गया रसूल अल्लाह आपके खुलफ़ा कौन हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे खुलफ़ा वो हैं अल्लज़ीना यहफ़ज़ूना अहादीसी व युबल्लिगूनहा इलन्नास, जो मेरी अहादीस को याद करते हैं और फिर उसको लोगों तक पहुँचाते हैं। और मेरे दोस्तों, ये फजीलत क्यों नसीब ना हो?
ये किस महबूब के कलाम को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं कि जिनकी शख्सियत का यह आलम था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कोई दिन उससे ज़्यादा हसीन नहीं देखा, खुशगवार नहीं देखा, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरह में दाखिल हुए। और उस दिन से ज़्यादा मैंने कोई दिन तारीख नहीं देखा कि जब अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप जब मदीना तशरीफ लाए, मदीने की आब व हवा मुनव्वर हो गई। आप दुनिया में तशरीफ लाए, ऐसा नूर आसमान तक बुलंद हुआ कि कैसर व कसरा के महल तक वो पहुंचा। तो जिस नबी के जिस्म का यह आलम हो, उसके पसीने का यह आलम हो कि वो इंतहाई खुशबूदार था। हज़रत उम्मे सुलैम फरमाती हैं कि मैंने एक दफ़ा अल्लाह के नबी के पसीने को एक शीशे में भर लिया था। आपकी खाला थी, फरमाती हैं इतना खुशबूदार वो मुअत्तर पसीना था कि मदीना मुनव्वरा की जिस लड़की की शादी होती उसकी खुशबू में वो एक कतरा अल्लाह के नबी के पसीने का मिला दिया जाता तो वो खुशबू भी ऐसी ज़बरदस्त हो जाती कि बाजार में उस खुशबू की कोई नज़ीर नहीं थी। तो जिस नबी की खुशबू पसीने के अंदर इतनी हो, जिसके पखाने में ये खुशबू हो कि जहां पर अल्लाह के नबी का बोलो बराज पड़ जाता, एक महीने तक वहां पर खुशबू आती रहती, गुजरने वाला समझ जाता कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलो बराज हुआ है। इसी वजह से उलमा का इख्तिलाफ हो गया कि शायद अल्लाह के नबी का ये बोलो बराज भी पाक था। तो मेरे दोस्तों, उसकी अहादीस कितनी खूबसूरत होंगी, उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी, उसने जो हमें जिंदगी का अंदाज बतलाया। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और दीगर सिहाए सित्ता के मुसन्निफीन ने हमें अपनी किताबों में किताबुल ईमान से लेकर इबादात, मुआशरत, मामलात, अखलाक, सब जिंदगी के हर शौबे ईमानियात से शुरू करके आखिर तक हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते रहे और ये अजीज तुलबा पढ़ते रहे। आज आप सब हजरात माशाल्लाह इसकी आखिरी हदीस के दर्स के सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस किताब के बारे में भी मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, इसको क्यों कहा जाता है, सबसे सही तरीन किताब क्यों है? ये जिस शख्सियत ने लिखी, ये जिसके इशारे पर लिखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हज़रत इमाम बुखारी ने कि मेरे हाथ में एक पंखा है, मैं अल्लाह के नबी से मक्खियां उड़ा रहा हूं। तो मैंने बाज़ मुअब्बिरीन से पूछा कि इसकी क्या ताबीर है? फरमाया अंत तज़ुब्बु अन्हुल कज़िब, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हदीस मुबारका में जो झूठी अहादीस लग जाती हैं तुम उनको उससे दूर करोगे और सही अहादीस को झूठी अहादीस से अलग करोगे। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इसके लिए इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस बात का इरादा कर लिया कि मैं एक किताब लिखूं। और फिर उनके सफ़र का क्या आलम था। 12 साल की उम्र में निकल गए अपने वालिदा और अपने भाई के साथ हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर उम्रा और हज की नीयत से 2 साल तक वहां पर रहे, वहां के उलमा से अहादीस को हासिल किया और उसके बाद वहां से चले और मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में सफ़र कर करके 17 साल के अरसे में फिर ये बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी। अल्लामा फिरबरी उनके शागिर्द फरमाते हैं हर हदीस को लिखने से पहले अपनी किताब में गुस्ल फरमाया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, अल्लाह से खैर मांगी और इससे पहले ये जो 7275 हदीस इस किताब के अंदर है, इससे पहले 7 लाख हदीसें जमा फरमाई। 7 लाख हदीसों में से 7275 हदीसों को इस तरह गुस्ल करके नफिल पढ़ के और इसके जितने तराजिम हैं, जैसे अभी आपने अजीज तालिब इल्म की इबारत सुनी बाब क़ौलिल्लाह व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ये तर्जुमा उन्वान कहलाता है। इसको रियाजुल जन्नह में बैठकर लिखा, सैकड़ों तराजिम है। तो वो किताब कितनी कीमती होगी, वो कितनी अजीम किताब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दर्स को सुनने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं।
तो ये जो सनद अजीज तालिब इल्म ने अभी पढ़ी, मैं इस सनद के बारे में आपको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह का कौल सुनाता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, अल इस्नादु मिनद्दीन, ये सनद दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लौलल इस्नाद लकाल मन शाअ मा शाअ, अगर ये सनद ना होती तो जिसके दिल में जो आता कह देता कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया। यही वो सनद है जिसकी वजह से आज बड़े रसूख के साथ ये कहा जा सकता है कि जो हदीस मुबारका इन सिहाए सित्ता में इस बुखारी शरीफ में है, ये बेआईन ही वही हदीस मुबारका है। आज अगर एक उस्ताद यहाँ आपको पढ़ा रहा है, एक शागिर्द उस इबारत को पढ़ रहा है, तो ये असल में शाह अब्दुल अजीज नव्वरल्लाहु मरक़दहु मुहद्दिस देहलवी फरमाया करते थे, यही समझो कि अल्लाह के नबी तुम्हारे दरमियान बैठे हुए हैं और वो तुम्हें हदीस सुना रहे हैं। कितनी वो मुस्तनद होगी, कितनी वो सही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख़ीरा अहादीस इसी तरह सही सनद के साथ महफूज है और उसकी बरकत से पूरा दीन आज जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। यही मतलब है ख़त्म नबूवत का। ख़त्म नबूवत एक मोहर है, एक मोहर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर अंबिया की जितनी जमाअत पीछे गुजरी, तो वो अंबिया की जमाअत और अल्लाह के नबी आपने खुद मिसाल देकर फरमाया कि ये एक ईंट थी, बड़ी खूबसूरत इमारत अंबिया की बनी, एक ईंट उसमें बाकी थी और वो ईंट में था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो ईंट उसमें लग गई तो ये अंबिया की इमारत खूबसूरत हो गई, नबूवत की मोहर लग गई। अब जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक ये दीन बाकी है, जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका ये बाकी हैं, क्योंकि ये कुरान की शरह है और कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान महफूज, कुरान की शरह भी महफूज, इसकी हिफाजत करने वाले उलमा ये भी महफूज। ये जिन जगहों पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ते हैं, मदारिस दीनिया, वो भी महफूज। ये सब का वादा अल्लाह ने इस आयत में फरमा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स आज हो रहा है और इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह के मुख्तसर हालात और इस किताब के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप ये बात जहन में रखिए, ये जो बाब आपने अभी पढ़ा, इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह की आदत मुबारक ये है कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह कुरान की आयत से अपने बाब की इब्तिदा करते थे। एक तो इसलिए इस्तिदलालन व इस्तिबराकन, बरकत हासिल हो जाए अल्लाह के कलाम की बरकत, और दूसरा दलील पकड़ने के लिए कि जो आगे मैं हदीस पेश करना चाह रहा हूँ इसी बात को अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया। और इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह पूरी किताब के अंदर अपने ज़माने के फ़िरक़ बातिला की भी भरपूर तरदीद करते थे। अकल परस्त लोग हर ज़माने में होते हैं, रोशन ख्याल जिन्हें कहा जाता है, तो उस ज़माने में मुअतज़िला हुआ करते थे। तो इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने पूरी किताब में उनके नज़रियात की तरदीद की और ये किताब किताबुत तौहीद के नाम पर, इसमें वर्रद अलल जहमिया, जहमिया भी उस ज़माने में एक गुरोह था, उनके नज़रियात की तरदीद के लिए इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने किताबुत तौहीद पर अपनी किताब को ख़त्म किया। इब्तिदा किताबुल ईमान से की और इंतहा किताबुत तौहीद पर की, और किताबुल ईमान से पहले एक बाबु बदइल वही बांधा। इशारा इस बात की तरफ है कि ईमान हो कि पूरा दीन हो, उसका जो मेयार है, उसकी जो बुनियाद है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल है। वही के बगैर कोई कलाम, जब गैर अंबिया पर वही नहीं आ सकती तो उनका सब कलाम बातिल है, वो मरदूद है। असल वही है, इसलिए वही से बाबु बदील वही से अपनी किताब को शुरू फरमाया और फिर किताबुल ईमान सबसे पहली किताब लेकर आए कि असल ईमान है, असल ईमान है। और इख्तिताम किताबुत तौहीद पर किया कि ईमान भी वो मोतबर है जो तौहीद वाला हो। आज बहुत से लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, ईमान वाला कहते हैं, लेकिन असल में उनका ईमान
वो तौहीद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौहीद से उसका ताल्लुक नहीं है। तो तौहीद अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात से मुतअल्लिक़ वही अक़ीदा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने किताबुत तौहीद पर ख़त्म करके किताबुत तौहीद और किताबुल ईमान के दरमियान भी रब्त बतला दिया कि ईमान जब वो मोतबर है जो तौहीद खालिस के साथ हो, तो पूरी किताब जो दरमियान में मैंने पूरा दीन बयान कर दिया, ये भी बग़ैर तौहीद के मोतबर नहीं है। इसी को कुरान मजीद की आयत में अल्लाह कुरान में फरमा रहे, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, तुम हाजियों को पाली पिलाना, मस्जिद हराम की तामीर करना, इससे बढ़कर क्या काम होंगे। अल्लाह फरमा रहे बगैर ईमान के तुम मुशरिकीन ये काम करते हो, तुम्हारा ये अमल ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर हो जाए कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह। तो असल तौहीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भाई इस तौहीद पर इस्तिकामत भी नसीब फरमाए और हम सब का खात्मा भी इसी तौहीद खालिस के साथ फरमाए। फिर इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सबसे पहली हदीस जो जिक्र फरमाई वो हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात थी कि अपनी नियतों को खालिस रखो, हिजरत जैसा ही अमल क्यों ना हो और कितना ही दूसरा कोई ऊंचा अमल ना हो, अगर तुम्हारी नियत खालिस नहीं है तो फिर उसका अजर तुम्हें नहीं मिल सकता। तो किताब की इब्तिदा इन्नमल अअमालु बिन्नियात से की और किताब का इख्तिताम वज़्न अमाल से किया। इशारा इस बात की तरफ है कि अगर अपने अमाल में वज़न पैदा करना चाहते हो तो जो मैंने शुरू में हदीस बयान की थी कि अपनी नियतों को खालिस रखो, इसका एहतमाम तुम्हें करना होगा। जब इसका एहतमाम करोगे तो तुम्हारे अमाल के अंदर इंशाअल्लाह वज़न होगा। तो पहली किताबुल ईमान की भी किताबुत तौहीद से रब्त वाज़े हो गया और हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात का भी वज़्न अमाल की हदीस से रब्त वाज़े हो गया। इमाम बुखारी ने इस रब्त का पूरी किताब में बहुत एहतमाम रखा। जैसे कुरान के 30 पारे हैं, इस किताब बुखारी शरीफ के भी 30 पारे हैं, 30 अज्जा हैं। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने कुरान की मुनासबत का भी बहुत ख्याल रखा, कुरान के तर्ज का भी बहुत ख्याल रखा, कुरान की आयतों को भी बार बार जिक्र किया। इशारा इस बात की तरफ भी है कि सिर्फ हदीस पढ़ने पढ़ाने के बाद ये मत समझ लेना कि तुम कुरान से मुस्तगनी हो गए। कुरान पढ़ने वाले ये ना समझ लें कि हम हदीस से मुस्तगनी हैं। ये कुरान और हदीस दोनों वही हैं और दोनों का खुलासा और समझ जमीअ मा तक़ूलुहुल अइम्मा जो फुक़हाए उम्मत ने हमें बतलाया है वो कुरान और हदीस ही की शरह है। ये फ़िक़्ह अलग से कोई चीज़ नहीं है। जो आज बहुत से लोग कहते हैं बस कुरान हदीस को मानो, बस कुरान हदीस की समझ ही भाई ये फ़िक़्ह है। कुरान हदीस हमें क्या कह रहा है ये बात हमें अइम्मा ने बतलाई, इसी का नाम फ़िक़्ह है। तो अल्लाह हमें दीन के ये जो माख़िज़ हैं कुरान हदीस फ़िक़्ह और इनको बतलाने वाले उलमाए उम्मत उनसे जुड़ने की भी तौफीक नसीब फरमाए और इसको समझकर अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने कुरान मजीद की आयत वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा पेश फरमाई है। इस बाब के तर्जुमतुल बाब के 2 जुज़ हैं। पहले जुज़ कुरान मजीद की आयत को पेश किया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजुएं कायम फरमाएंगे। अब ये मवाज़ीन तो मीज़ान की जमा है। मीज़ान किसे कहते हैं, मीज़ान क्या चीज़ है, तो उसके बारे में मीज़ान के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि मीज़ान सही बात यह है कि एक ऐसा जिस्म है, एक ऐसा जिस्म महसूस है जो क़यामत के दिन कायम की जाएगी। लहू किफ़्फ़तान जिसके 2 बड़े बड़े पल्ले होंगे, व लिसान और उसकी ज़बान भी होगी और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहू किफ़्फ़तान क़यामत के दिन मीज़ान को कायम किया जाएगा जिसके इतने बड़े 2 पल्ले होंगे कि लौ वुज़िअ फ़ी अहदिहिमा अगर उनमें से एक के अंदर 7 ज़मीन और आसमान को रख दिया जाए तो एक पल्ले में इतनी गुंजाइश होगी। तो ये है मीज़ान की तारीफ जो अल्लाह कल क़यामत के दिन कायम फरमाएंगे। और ये कुरान मजीद में तो अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया
तो इसी वजह से फतहुल बारी में अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक कौल के मुताबिक जितने इंसान हैं इतनी मीज़ानें कायम होंगी। हर इंसान के लिए अलग तराजू, हर इंसान के लिए अलग तराजू, हर इंसान के लिए अलग तराजू। इसीलिए अल्लाह मवाज़ीन फरमा रहे कि कई मीज़ानें क़यामत के दिन कायम होंगी। और दूसरा कौल इसमें यह है कि जो सही तरीन कौल है कि क़यामत के दिन एक ही मीज़ान कायम होगी और उसकी पैमाइश इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें सातों ज़मीन और आसमान आ सकते होंगे। फिर जो जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया वो इस एतबार से कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल हैं, इस एतबार से फरमाया कि मीज़ान कायम होगी। अल्लाह ने तफ़ख़ीम के लिए फरमाया मीज़ान कायम होगी, गोया कि ये बहुत बड़ी अज़मत वाला, जैसे कई मीज़ानें हो तो उसकी अज़मत को बयान करने के लिए तफ़ख़ीम के तौर पर अरबी में उसे कहा जाता है, जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। तो बहरहाल एक मीज़ान हो या कई मवाज़ीन हो, आमाल का वज़न तो होगा। इस बात को साबित करने के लिए अगला जुमला इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बनी आदम के आमाल का भी वज़न होगा और उनके अक़वाल का भी वज़न होगा। आमाल का भी वज़न और अक़वाल का भी वज़न। अब ये इस वज़न के लिए जो सिफत इस्तेमाल की गई मीज़ान के लिए वो मवाज़ीन अल-क़िस्ता, ये क़िस्त मस्दर है और मवाज़ीन अगर जमा का लफ्ज़ है तो इसके बारे में मुहद्दिसीन ने एक जवाब तो ये दिया कि ये मस्दर कभी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ज़ैदुन अदलुन कहा जाता है कि ज़ैद अदल है, यानी सरापा अदल है। तो ये मीज़ानें इतनी इंसाफ वाली होंगी कि अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया कि ये सरापा इंसाफ होंगी, जो सरापा अदल होंगी। वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्ता। और अल्लामा इब्न ज़ुजाज नहवी फरमाते हैं कि ये ज़वातुल क़िस्त के माना में है कि इंसाफ वाली तराजू, इंसाफ वाली तराजुएँ कायम होंगी। तो बहरहाल इमाम बुखारी फरमा रहे कि इस तराजू में क्या होगा, इसमें इंसानों के आमाल का वज़न होगा, इंसानों की बातों का वज़न होगा। अब इंसानों के आमाल और उसकी बातों का वज़न तो होगा, ये तो कुरान ने कह दिया, लेकिन उसकी कैफियत क्या होगी, उन आमाल के वज़न की सूरत क्या होगी। उन आमाल को बराह रास्त तोला जाएगा, नामा आमाल की सूरत में तोला जाएगा, या उसको कोई जिस्म महसूस अता कर दिया जाएगा। ये सारे मुख्तलिफ अक़वाल हैं। और जैसा कि एक रिवायत से पता चलता है कि खुद इंसान का वज़न होगा। तो ये उस ज़माने की बात है जबकि आराज़ का वज़न कोई मुश्किल बात थी। जो चीज़ें नज़र नहीं आती, जिनका जिस्म नहीं होता, उन्हें आराज़ कहा जाता है। तो आराज़ का वज़न उस ज़माने में समझ में आने वाली बात नहीं थी, इसलिए मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अक़वाल इरशाद फरमा दिए। तो एक कौल जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस से भी पता चलता है और अल्लामा क़ुर्तुबी रहिमहुल्लाह ने भी इसको राजे करार दिया है, वो ये है कि इससे मुराद नाम आमाल है। नाम आमाल का वज़न होगा और उसकी दलील हदीस बिताका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक शख्स को क़यामत के दिन लाया जाएगा और अल्लाह उससे पूछेंगे कि तेरे नाम आमाल में इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं, तो क्या मेरे फरिश्तों ने ये सब कुछ सही लिखा? तो वो कहेगा सही लिखा। क्या तेरे पास कोई उज़र है? वो कहेगा मेरे पास कोई उज़र नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे कि क्या तुझे अपनी नजात की अब कोई उम्मीद नजर आ रही है? वो कहेगा मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अल्लाह फरमाएंगे कि हाँ, तेरी एक नेकी हमारे पास है। एक तरफ ये तेरे 100 के 100 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए और एक तेरी एक नेकी जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ होगा। वो बिताका छोटी सी पर्ची होगी, उसको दूसरे पल्ले में रख दिया जाएगा
हदीस में आता है फताशतिस सिजिल्लात, तो उसका जो वो गुनाहों का पल्ला जिसमें रजिस्टर के रजिस्टर गुनाह के थे, इस एक छोटी पर्ची की वजह से वो छोटी पर्ची वाला कलमे का पल्ला इतना भारी हो जाएगा कि ये सारे दफ्तर के दफ्तर हवा में उखड़ जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे और ये बिला वजन हो जाएंगे। तो पता चला कि वजन जो होगा ये नामे अमाल का होगा, कि कितने फरिश्ते नेकियां लिखते हैं और कितने फरिश्ते गुनाह लिखते हैं, और इस नामे अमाल के वजन के एतबार से इंसान के बारे में कल क़यामत के दिन फैसला होगा। दूसरा कौल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाया करते थे कि अल्लाह कल क़यामत के दिन अमाल को एक जिस्म अता कर देंगे, उसको एक सूरत अता कर देंगे, और जब वो सूरत अता हो जाएगी तो फिर उसका वजन होगा। और इसी बात को आलम हक़ाइक़ से ताबीर किया जाता है। जितने हमें ऐसी चीज़ें हैं, जितने हमारे सामने ऐसे आमाल हैं जो नज़र नहीं आते, तो अल्लाह ने एक आलम ऐसा बनाया है जहाँ पर हर चीज़ की एक शक्ल है जो हमें दुनिया में नज़र नहीं आती। आलम हक़ाइक़, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हो जाए उसे एक क़िरात अजर मिलेगा, तदफीन में भी शामिल हो जाए 2 क़िरात अजर मिलेगा। अब आलम हक़ाइक़ में पूछा गया, या रसूल अल्लाह उसका वज़न, क़िरात का वज़न क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक क़िरात उहद पहाड़ के बराबर है। तो आलम हक़ाइक़ में अल्लाह जो दुनिया में हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही उसको शक्ल अता कर देंगे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की लज्जतों में एक लज्जत ये भी होगी कि जो चीज़ें हम दुनिया में देख नहीं सकते, अल्लाह वहाँ हमें उसकी असल सूरत दिखला देंगे। तो इसी वजह से किस तरह वज़न होगा, क्या उसकी हकीकत है, हर अमल की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक सूरत अल्लाह क़यामत के दिन अता कर देंगे और उसका फिर वज़न होगा। और तीसरा जो कौल है इस बारे में वो ये है कि खुद इंसानों का वज़न होगा। ये आमाल से इंसान की एक कीमत होती है अल्लाह की नज़र में, या तो वो वज़नी हो जाता है या फिर हल्का फुल्का हो जाता है। बज़ाहिर तो वो लोगों में बहुत बड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स गुजरा, आपने सहाबा से पूछा कि तुम इसको कैसा समझते हो? सब ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह ये तो इतना मशहूर आदमी है, बात करे तो सब इसकी बात सुने, कहीं पैगाम दे तो इसके रिश्ते को लोग कबूल कर लें, और ये तो इसकी शोहरत का क्या कहना, इसकी तो बड़ी इज्जत और वक़ार है। फिर दूसरा शख्स गुजरा, आपने सहाबा से पूछा इसको कैसा समझते हो? कहा, या रसूलल्लाह तो सीधा सादा आदमी है, इसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है, बात करे तो कोई सुने नहीं, कोई पैगाम निकाह दे तो उसको कोई कबूल नहीं करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पहले जैसा शख्स जिसको तुम कह रहे हो कि वो बड़ा मशहूर और कीमती और इज्जत वाला आदमी है, सारी दुनिया भी भर जाए तो अल्लाह की नज़र में इस दूसरे शख्स के बराबर नहीं हो सकती जिसकी तुम्हारी नज़र में कोई औकात नहीं है। इसलिए कि ये पहला शख्स ये अल्लाह की नज़र में वज़नी नहीं है और दूसरा शख्स वज़नी है, इसकी कीमत है। इसी के बारे में हदीस पाक एक साफ दलालत करती है, लयाति रजुलुस समीन, क़यामत के दिन एक मोटा ताज़ा भरकम भरा हुआ जिस्म वाले शख्स को लाया जाएगा, और जब उसे मीज़ान अदल में बिठाया जाएगा तो मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। तो इस हदीस से पता चलता है कि आमाल से इंसान का अपना एक वजन अल्लाह के यहाँ कायम होता है, उसकी एक कीमत कायम होती है। बहरहाल ये 3 कौल मैंने अर्ज किए। आमाल को शक्लें दी जाएंगी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल है। अल्लामा कुर्तुबी ने फरमाया सहाइफुल आमाल का वजन होगा, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत और हदीस बिताका इस पर दलालत करती है। और तीसरा कौल मैंने आपको बताया इंसानों का वज़न होगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इन तीनों कौल में अपनी एक कौल की तायीद की है, और वो ये कि ये तावीलात करने की ज़रूरत नहीं है, खुद अमाल का वज़न होगा। अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, और अल्लाह इस पर कादिर है,
अल्लाह इस पर कादिर है कि जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही उसका वज़न कल क़यामत के दिन कायम हो जाए। आज हरारत है, बुरूदत है और डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी सर्दी है, इतनी गर्मी है, तो ये चीज़ें भी हमें नज़र नहीं आती, तो हमारे आमाल का वज़न भी कल क़यामत के दिन उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बराह रास्त इन आमाल का भी वज़न होगा और इन अक़वाल का भी वज़न होगा। ये इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने राजे करार दिया। अब ये आमाल में वज़न कैसे कायम होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आमाल का वज़न तो होगा। अपनी किताब में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने, जैसा कि बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अपने कश्फ के ज़रिए अल्लाह ने उनको इल्हाम कर दिया था, कश्फ फरमा दिया था कि आपने जो किताब लिखी है इसको पढ़कर तुलबा आलिम कहलाएंगे और उनको उलमा कहा जाएगा। तो इमाम बुखारी जाते जाते हमें सबक दे रहे हैं कि इतनी तुमने किताबें पढ़ी, इतनी अहादीस नबविया पढ़ी, अब फिक्र इस बात की करो कि तुम्हारे आमाल के अंदर वज़न हो। इसलिए कि निरा इल्म काफ़ी नहीं है। निरा इल्म तो शैतान के पास सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से इल्म नाफ़िअ की दुआ हमें सिखलाई कि अल्लाह से इल्म नाफ़िअ मांगो। ज़मज़म पीकर हम जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, और पनाह मांगी अल्लाह से, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो डरे नहीं, ऐसी आँख से जो बहे नहीं, तो पनाह मांगी ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे। तो इल्म, निरा इल्म शैतान के पास सबसे ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि उसने सारे अंबिया की किताबें पढ़ी हैं। हमने तो एक बुखारी शरीफ पढ़ी है ना, उसने सारे अंबिया की किताबें पढ़ी हैं, सारे अंबिया के बयानात सुने हैं, उनकी तकरीरों में शामिल हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं उसका इल्म कितना होगा, उसका इल्म कितना होगा। लेकिन जो इल्म उसे अल्लाह के गज़ब से बचा ना सका, इसे इल्म का क्या फ़ायदा। तो निरा इल्म काफ़ी नहीं है, असल इल्म इल्म नाफ़िअ है। और इल्म नाफ़िअ वो है जिसके नतीजे में अमल वज़नी हो, अमल वज़नी हो। अमल अगर बेवज़न है तो इसका मतलब इल्म नाफ़िअ नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ अमाल की गिनती नहीं है। ये नहीं देखा जाएगा आपने करोड़ों रुपए अल्लाह की राह में दिए कि 10 रुपए दिए, आपके अमाल का वज़न होगा। आपकी नमाजों की गिनती नहीं होगी, कितनी नफलें रोज की पढ़ी, हाँ नमाजों का वजन होगा, इसमें खुशू कितना था। सदकात का वजन होगा, इसमें खिफा कितना था। अल्लाह की रजा को सामने रखकर खुफिया तौर पर सदका देने का एहतमाम कितना था। आपकी दुआओं का वजन होगा, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, उसमें आजिज़ी कितनी थी, उसमें चुपके चुपके अल्लाह को कितना पुकारना था। आपके जिक्र का वजन होगा कि उस जिक्र में अल्लाह का कितना ध्यान था, कितना रातों की तन्हाइयों में अकेले में अल्लाह को याद करने की लज्जत इसको नसीब थी। आपके सजदों का वजन होगा, कितना सजदे में दुनिया में सुरूर हासिल करते थे, इखलास के साथ अकेले अंधेरे में रातों को लंबे लंबे सजदे करते थे। तो सहाबा की शान थी, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे, वो उनकी शान तन्हाइयों में। तो वजन कल क़यामत के दिन, वजन कल क़यामत के दिन होगा। हर मुसलमान को भाई इसकी फिक्र करनी चाहिए कि आज मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज वजनी हो जाए। मैं रोजे रख रहा हूँ, रोजे तकवे के साथ वजनी हो जाए। मैं सदका खैरात दे रहा हूँ, मेरा ये सदका खैरात इखलास के साथ, खामोशी के साथ, बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दे दिया, बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दे दिया। ये सदक़े के अंदर वजन पैदा करता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सब को भाई अपने आमाल के वजन की फिक्र नसीब फरमाए। और उलमा ने लिखा है, आमाल में वजन दो चीजों से पैदा होता है, एक सिद्क से, दूसरा इखलास से। सिद्क ये है कि हर अमल को सुन्नत के मुताबिक करे। आज माशाल्लाह इतना मजमा है और इतनी आवाम भी तशरीफ लाई है जो आम तौर पर मदारिस में
तालीम हासिल नहीं करती, लेकिन इन दर्स बुखारी शरीफ के छोटे छोटे सबक हमें मिल रहे हैं। अगर हमने इंशाअल्लाह इन पर अमल कर लिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेड़ा पार हो जाएगा। इन तुलबा के साथ इंशाअल्लाह हमारा हशर हो जाएगा। तो याद रखिए, हमें अपने आमाल में वज़न पैदा करने के लिए सबसे पहली इस बात की फ़िक्र करनी होगी कि हमारी शक्ल सूरत से लेकर हमारी खुशियाँ, हमारी गमियाँ, हमारी घरेलू ज़िंदगी, हमारा लिबास, हमारा अंदाज़ तकल्लुम, हर चीज़ सुन्नत के मुताबिक हो। हमें मालूम है, हर शख्स को मालूम है, दाढ़ी रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने फरमाया दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछों को कतराओ। सफ़ेद लिबास अल्लाह के नबी को पसंद है। बैठकर खाना अल्लाह के नबी की सुन्नत थी। बैठकर पीना अल्लाह के नबी की सुन्नत थी। घर में अच्छे अखलाक के साथ रहना, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है और मैं भी अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा हूँ। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मेहनती अहलिही, आप अपने घर के मामूली कामों में, बकरी का दूध धोना है, बर्तन मांज देना है, झाड़ू लगाना है, ये सारे काम कर लिया करते थे, हमें मालूम है। लेकिन आज हमारी जिंदगियां माजरत के साथ सुन्नत से दूर हैं। शादी ब्याहों में बड़े बड़े समझदार डॉक्टर और इंजीनियर खड़े होकर जानवरों की तरह माजरत के साथ खाते हुए नजर आएंगे। हम अपनी प्लेटों को उसमें खाना इतना जाया करते हैं जो एक जानवर में और हम में माजरत के साथ कोई तमीज नहीं। प्लेटों को साफ रखना, एक दाना दस्तर पर गिर जाए उसको उठाकर साफ करके खा लेना, एक एक सुन्नत हमें मालूम है। अगर खुदा की कसम, हज़रत शेख हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिनकी फ़ज़ाइल आमाल हम पढ़ते हैं, सदक़ात हम सुनते हैं, इनके वालिद मुहतरम फरमाया करते थे कि मेरी नज़र में सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला में जाना, इंसान दुआ पढ़कर जाए, उल्टा पाँव पहले अंदर रखे और फिर वापसी में अच्छी तरह अंदर से तहारत करके पहले दाया पाँव बाहर निकाल के भी दुआ पढ़ ले। फरमाया मेरी नज़र में सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला में जाना खिलाफ सुन्नत 2 रकात नफिल नमाज से अफजल है। आज हमारी नमाज़ें सुन्नत के मुताबिक है, आज हमारा इस्तिंजा, हमारा वुजू, तो याद रखिए हमारा हर अमल वजनी हो सकता है अगर वो सुन्नत के मुताबिक हो। हमारा सोना भी वजनी होगा कल क़यामत के दिन। अगर हम दाई करवट पर सोए, जिक्र करते करते सोए, तस्बीहात फातिमा पढ़कर सोए, आयतुल कुर्सी और 4 खुल पढ़कर सोए, अपने ऊपर दम करके सोए और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली, तो सारी रात इबादत का अजर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे पूरी रात फरिश्ते इसका सोना भी इबादत लिख देंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह हमें हर अमल में वजन पैदा करने के लिए एक तो सुन्नत के एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए और दूसरा इखलास। ये इखलास इतनी ऊंची चीज है कि कल क़यामत के दिन ऐलान होगा। बड़ी खतरनाक हदीस है मेरे दोस्तों। ये कुछ मेहमान हमारे यहाँ दाएं तरफ से आते हैं, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है भाई आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो, बात की तरफ मुतवज्जो हो। बहुत अहम दर्स है, मेहमानों की आमद और रफ्त जारी रहेगी। जो इधर उधर देखेगा वो पीछे कर दिया जाएगा अल्लाह की नज़र में। मन तक़द्दमा, जो आगे बढ़ने की नियत करेगा, तलब के साथ सुनेगा, इंशाअल्लाह उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे आमाल में इखलास का हमें खूब एहतमाम करना है, खूब एहतमाम करना है। पढ़ने पढ़ाने से लेकर ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह के फ़ज़ल से हमें सदका खैरात की तौफीक मिलती है, हमें दूसरे अच्छे कामों की तौफीक मिलती है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी की तौफीक मिलती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कल क़यामत के दिन हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन लोगों को जमा जब फरमाएंगे तो एक मुनादी आवाज़ लगाएगा कि जिसने जिसको खुश करने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए जो काम किया था, आज वो उससे जाकर उसका बदला ले ले। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहे हैं अना अगना शुरकाए अन शिरकी, कि मैं सब शरीकों के शिरक से बहुत मुस्तगनी हूँ। तुमने दुनिया में रिया करके लोगों को मेरे साथ शरीक किया, ये रियाकारी शिरक खफी है। कल क़यामत के दिन ऐलान होगा
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता ऐलान करेगा, जिसने दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए अच्छे काम किए, आज उसके अयूब लोगों को दिखाए जाएं। मन सम्मा, जिसने लोगों को सुनाने के लिए दुनिया में मेरा चर्चा हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मेरी तस्वीरें चल जाएं, मेरी पिक्चरें और मूवियां लोगों को पता चले मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मैं गरीबों के साथ ताआवुन कर रहा हूं, तो मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी फरमा रहे क़यामत के दिन उसके अयूब लोगों को सुनवाए जाएंगे, उसके अयूब लोगों को सुनवाए जाएंगे। हजरत अमीर मुआविया जो खलीफा बने तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा को एक छोटी सी दरख्वास्त लिखी। फरमाया, मुझे अल्लाह के नबी की एक ऐसी वसीयत आप मुझे कर दीजिए जो मेरी पूरे खिलाफत के लिए काफ़ी हो, पूरे खिलाफत के मामूलात में वो हदीस मेरे लिए काफ़ी हो। और ये भी फरमाया, ला तुक्सिरी, ज़्यादा नसीहतें नहीं कीजिएगा, मुख्तसर। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने एक सतर की हदीस लिखकर भेज दी, मनिल तमस रिज़ल्लाहि बिसखतिन नास कफ़ाहुल्लाहु मुअनतन नास व मनिल तमस रिज़न नास बिसखतिल्लाह वक्कलहुल्लाहु इलन नास वस्सलाम। क्या फरमाया, जो अल्लाह की रजा का तालिब होता है, अल्लाह को खुश करने का जज्बा उसके अंदर होता है, लोगों की नाराजगी की परवाह नहीं करता, हक बात को कहने में लोगों की नाराजगी की परवाह नहीं करता, शादी ब्याहों में सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ करने में लोगों की मलामत की परवाह नहीं करता, अपनी शक्लों के ऊपर, चेहरों पर दाढ़ियां सजाने, अपनी लिबास को सुन्नत के मुताबिक बनाने, खातून हया की चादर को सर पर डालने में वो अल्लाह की रजा की तालिब होती है, लोगों की नाराजगी की परवाह नहीं करता, तो अल्लाह लोगों की ईज़ाओं से, उनकी बातों से, उनके मजाक और तमस्खर से खुद बराह रास्त काफी हो जाते हैं और उसकी कफायत कर जाते हैं। और फरमाया, जो लोगों को खुश करने के चक्कर में रहता है, अल्लाह को नाराज करके, तो अल्लाह फिर लोगों के ही उसको सुपुर्द कर देते हैं। आज इसको खुश किया, ये भी खुश नहीं हुआ, इसलिए कि खुश कौन करता है, घरों में सुकून कौन लाता है, कहो भाई अल्लाह। अगर लोगों को खुश करते रहे अल्लाह को नाराज करके, न ऐसी शादी ब्याहें हमें खुश कर सकती हैं, न लोगों की हम शादी ब्याहों में जाते हैं, सैकड़ों खाने, सैकड़ों खुशियों के असबाब, फिर भी लोगों की जबान पर ज्यादा डिशें होती हैं, तो भी हम लोगों की बातों को सुनते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। और अल्लाह दिखाता है, अल्लाह को नाराज किया, इसराफ किया, दिखलावा किया, इतनी आइटम थी, समझ ही नहीं आई क्या खाए, ये बातें भी लोग करते हैं। तो भाई बात यह है कि फिर अल्लाह लोगों को ही सुपुर्द कर देते हैं। आज इसको खुश करो अल्लाह नाराज, कल इसको खुश करो अल्लाह नाराज। और एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि अगर कोई किसी चट्टान के अंदर छुप कर भी कोई अमल करेगा, अच्छा हो या बुरा, किसी कोने बंद कमरे के अंदर भी कोई अमल करेगा, अच्छा या बुरा, तो उसका असर भी अल्लाह लोगों के सामने जाहिर कर देंगे। अच्छी बात होगी, इखलास के साथ करेगा, खुद लोगों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देंगे। बुरी बात होगी, चाहे लोगों के सामने वो मुअज़्ज़ज़ बनता फिरे, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी नफरत डाल देंगे। तो भाई असल इखलास है, तो सिद्क भी हो और इखलास भी हो, तो इंशाअल्लाह आमाल में वजन होगा। हमारे आमाल, आज नियत कीजिए, आज से जितना मजमा यहाँ बैठा हुआ है, जितनी मेरी माँ और बहनें मेरी बात को सुन रही हैं, अपने घरों में अगर हम ऊपर बैठ के खाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ के खाते थे, बगैर टेक लगाए खाते थे। आकुलु कमा याकुलुल अब्द, मैं ऐसे खाता हूँ जैसे गुलाम खाता है, मिस्कीनों की तरह खाते थे और मामूली दस्तरखान पे खा लेते थे और दस्तरखान को साफ रखते थे और प्लेट को साफ रखते थे। घर में दाखिल होने से लेकर निकलने तक अल्लाह के नबी की जिंदगियों में जो घरों में है उसको घरों में जिंदा करें। कारोबार में अल्लाह के नबी ने हमें ताजिर बनकर भी दिखाया, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, सच्चाई को रिवाज दें, अमानतदारी को रिवाज दें। हदीस पाक में आता है इसकी बरकत से हमारी तिजारत में बरकत होगी, बरकत होगी। अगर हम एक मुलाजिम में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमारी तिजारत से बरकत उठ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, सिद्क और इखलास अल्लाह हर अमल में हम सबको नसीब फरमाए और हमारे अमाल फिर भले थोड़े हों लेकिन इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन वज़नी होंगे। अब याद रखिए, इमाम बुखारी ने अमाल के वज़न के साथ साथ एक लफ्ज़ फरमाया,
अक़वालहुम यूज़न, तुम्हारी बातों का भी वजन होगा, तुम्हारी बातों का कल क़यामत के दिन हिसाब होगा। आज जो हमारी ज़बानों से जो गुनाह हो रहे हैं, याद रखिए बड़ी ख़तरनाक हदीस है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब मैं ये हदीस पढ़ाने लगा, तो मैंने उसको महफूज कर लिया। मैंने नियत की कि आप सबको ये हदीस सुनाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी दुनिया से रुखसत हुए, तो दूसरे सहाबी जो है उनके बारे में कहने लगे, क्या अजीब जुमला उन्होंने कहा कि ये तो जन्नती है। आप अंदाजा लगाइए, सहाबी दुनिया से जा रहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का परवाना है, जन्नत की बशारत है, सब सहाबा के लिए जन्नत की बशारत है। लेकिन मुझे और आपको समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। आपने फरमाया कि तुम कैसे कह रहे हो ये जन्नती है, क्या पता वो लायानी और फजूल बात में मशगूल रहता हो, लायानी और फजूल बात में मशगूल रहता हो, या ऐसी चीज से बुखल करता हो जो अल्लाह ने उसको सदक़े का हुक्म दिया। तो आपने दो बातें फरमाई इसमें, एक फरमाया बुखल शायद इसको जहन्नम में पहुंचा दे, और दूसरा फरमाया लायानी और फजूल बात। और मेरे दोस्तों वो तो सहाबी थे, वो तो जन्नती थे। तो आज हम में से किसकी जिंदगी में लायानी नहीं है? ऐसी बात जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। हमारे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू अक्सर हमें ये बात फरमाया करते थे कि जब तबलीग के बानी हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने नंबर मुतय्यन किए, फरमाया कि वो 6 नंबर नहीं थे, 6 नंबर तो मशहूर है, बोला फरमाया वो 7 नंबर थे, और 7वीं बात थी लायानी और फजूल बातों से एहतियात। ये 7वां नंबर था तबलीग का। ये इस्लाम का हुस्न है। इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने 4 लाख हदीस से 4000 हदीसें लिखकर अबू दाऊद शरीफ लिखी, और उसमें से फिर 4 हदीसें निकाली जिस पर पूरे दीन की बुनियाद है। उसमें एक हदीस यही है, आज तुम अपनी शक्लों को हसीन बनाना चाहते हो, अपने लिबासों को हसीन बनाना चाहते हो, अपनी जूतियों को हसीन बनाना चाहते हो, आज अगर तुम इस्लाम के हुस्न की फिक्र करो तो मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, तुम्हें बेकार और फजूल बात जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, उसको छोड़ना होगा, उसको छोड़ना होगा। ये जबान ऐसी चीज है, जुर्म हो सगीर व जुर्म हो कबीर, जिसका जिस्म तो बहुत छोटा है लेकिन इसके जुर्म बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। हाँ, अच्छाई के लिए भी ये बहुत जबरदस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान नेकियां करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है, लेकिन जबान का एक बोल इसको वहां से उठाकर बीच जहन्नम के अंदर डाल देता है। किसी की गीबत कर ली, किसी की बुराई कर ली, किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया। इस जबान पर कंट्रोल, इमाम बुखारी जाते जाते हमें नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, तुम्हारी बातों का कल क़यामत के दिन वजन होगा। चाहे वो कितना बड़ा अल्लामा हो जाए, आलिम हो जाए, फकीह हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, और हम आवाम तो भाई सब इसके मोहताज हैं। आज जो हमारी महफिलों में इधर की उधर, उधर की इधर किसी बात की कोई तहकीक करे बगैर उसको मुंतकिल कर देना, कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ये इंसान के झूठा होने के लिए काफी है, जो बात सुनी आगे नकल कर दी। कभी किसी की, हमारे तबलीगी बुजुर्ग हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मक़दहू को सैकड़ों मरतबा लोगों ने मारा, खबर आई, इंतकाल हो गया, खबर फैल गई, पता चला हाजी साहब तो जिंदा है। इस तरह कितनी खबरें आज हमारे सोशल मीडिया पे इधर से उधर, उधर से इधर हो जाती हैं। लोगों की बुराइयां तो आज हमारी महफिलों की जीनत बन चुकी है, जो जिना से बदतर गुनाह है। किसी को गालम गलोच करना, किसी की बेअदबी करना, छोटों के दिल में माँ बाप की बेअदबी, ये ऐसा गुनाह है जो हमको जहन्नम के अंदर ले जाएगी। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सरासर अदब है। आप अलैहिस्सलाम से कोई पूछता, या रसूल अल्लाह सबसे ऊंचा अमल बतला दीजिए, सबसे ऊंचा अमल बतला दीजिए। आप एक ही बात फरमाते, बाज़ औक़ात अपनी ज़बान की हिफाजत करो। तो एक दफा सहाबा की महफिल लगी हुई थी, एक एक अमल सहाबा ने गिनवाए। या रसूल अल्लाह सबसे ऊंचा अमल अल्लाह की नजर में नमाज नहीं?
आपने फरमाया इससे भी ऊंचा अमल है। ज़कात नहीं, इससे भी ऊंचा अमल। जिहाद नहीं, आपने फरमाया इससे भी ऊंचा अमल है। सुभान अल्लाह। फिर आपने अपनी ज़बान पकड़कर फरमाया इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या इस जबान की वजह से भी कोई जहन्नम में जाएगा? आपने फरमाया हल युकब्बुन्नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, क़यामत के दिन लोगों को ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डालने वाली चीज ये इंसान की जबान की खेतियां होंगी। और खेती से क्यों ताबीर किया? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं दरांती से जब माली खेती को काटता है तो खुश्क और तर हर किस्म की घास को वो काट देता है। तो जबान से जब हम बोलते हैं अच्छे बुरे हर तरह की खेती जो हमारी जबान की है, फरमाया बड़े बड़े नमाजी, रोजेदार, हाजी और सदका देने वाले और अल्लामा, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारी आवाम में लोगों को नेक समझा जाए। हम सबको डरना चाहिए। अल्लाह बचाए ये हमारी जबानों के बोल ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में हमें ना ले जाए। इसलिए इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने हमें तंबीह कर दिया कि तुम्हारी बातों का वजन होगा। हज़रत इमाम शाफ़िई रहीमहुल्लाह से कोई बात पूछता तो हज़रत इमाम शाफ़िई रहीमहुल्लाह पहले खामोश हो जाते फिर जवाब देते सोच कर। किसी ने पूछा कि हजरत आप इतना वक्फा करते हैं जवाब में, तो फरमाया कि मैं हर बात के जवाब में देने से पहले अपने आप को जन्नत और जहन्नम दोनों पर पेश करता हूं। अगर दिल का इत्मीनान हो जाए कि मेरा ये जुमला मुझे जहन्नम में नहीं ले जाएगा फिर मैं वो बात करता हूं, वरना मैं उसका जवाब देने से रुक जाता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह करे अगर हमारे मुआशरे में आज जो सास बहुओं के झगड़े हैं, नंद भाभियों के मसले हैं, खानदानों में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, इन सब की वजह ज़बानों की आज़ादी है। खुदा की कसम अगर इसकी हिफाजत हो जाए, न किसी की बुराई सुने न किसी की बुराई करें, तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा छोटा सा घर होगा। सहाबा की जिंदगियां कैसी थी? कोई फारिस का था सलमान फारसी, तो कोई रोम का था सुहेब रूमी, कोई कहाँ का था कोई कहाँ का था, लेकिन मदीने की गलियों में अपनी जबानों की हिफाजत की वजह से, एक दूसरे पर ईसार करने की वजह से, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने की वजह से ऐसा लगता था सगे माँ बाप की औलादें हैं, सगे माँ बाप की औलादें हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में जो सुकून खत्म है, घरों का सुकून खत्म है, वो जबानों की आजादियों की वजह से। ऐसा बोलना हो अल्लाह करे कि कल क़यामत के दिन कोई हमारी शिकायत करे अल्लाह के सामने। इंसान को इस बात से डरना चाहिए, कोई बड़ा कोई जालिम आज अपनी जुल्म की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, अपनी जबान से ऐसी बातें कर रहा है कि ये क्या कर सकता है। एक गुलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसका आका उसको सजाएं दिया करता था। तो अल्लाह के नबी के पास आया, आप अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से फरमाया कि तुम्हारी ये सजाएं और उसकी सारी नाफरमानियों का क़यामत के दिन वजन होगा। अगर तुम्हारी सजाएं ज्यादा हो गई तो तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा, और अगर उसकी नाफरमानियां ज्यादा हो गई तो उसे सजा मिलेगी। तो उनको इतना खौफ आया कि उन्होंने उस गुलाम को अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह हम सबको भाई जहाँ सिद्क़ व इखलास के साथ अपने आमाल को वज़नी बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वहीं अक़वाल में भी, बातों में भी एहतियात के साथ हर जुमले को तफ़क्कर अव्वलन सुम्मा तकल्लम, पहले तोलो फिर बोलो, इस ज़ाब्ते पर चलने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए कि जब तक इंसान बात नहीं करता, वो बात का बादशाह होता है, और जब बात कर दे तो फिर बात उसकी बादशाह बन जाती है। अल्लाह के नबी को मेराज के मौके पर एक ऊंट दिखाया गया। एक ऊंट दीवार से निकला, वो टकरे मार रहा है, दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। आपने फरमाया ये मोमिन और इंसान के मुंह से निकलने वाला वो बोल है, उसने बोल दिया, अब वो चाहता है मैं उसको वापस ले लूं, इसका असर अब खत्म हो जाए, लेकिन अब खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि जब बोल दिया तो अब बात उसकी बादशाह बन गई। इसी वजह से अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, जराहातुस्सिनानी लहल्तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। इसका तर्जुमा एक शायर ने उर्दू में किया, छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरा, घाव कहते गहरे जख्म को,
छुरी से, तीर से, तलवार से गहरा जख्म लगा दो वो भर जाएगा। छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरा, लगा जो जख्म ज़बां का, रहा हमेशा हरा। वो हमेशा हरा रहता है, उसको इंसान पे धो नहीं सकता। तो हमें डरना चाहिए, हमारी इन बातों का भी वज़न होगा। अल्लाह इन बातों के कल क़यामत के दिन नुक़सानात से, उसकी सज़ाओं से हमारे मर्दों को, हमारी ख़वातीन को, हमारे उलमा को, हम सब को भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए। इसके बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी आदत के मुताबिक कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर पेश करते हुए वज़िनू बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम में फरमाया, वक़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तास अल-अदल बिर-रूमिया, कि क़िस्तास के माना रूमी ज़बान में अदल के आते हैं। और ये सिर्फ शरअ नहीं है, इससे इमाम बुखारी ने एक मसले की तरफ भी इशारा कर दिया। वो मसला क्या है कि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस कुरान को हमने अरबी ज़बान में उतारा है, तो क्या कुरान मजीद में कोई अल्फाज ऐसे भी हैं जो दूसरी ज़बानों के लिए हुए हैं? तो हज़रत इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का कौल ये है कि कुरान मजीद के अंदर, जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि रूमी ज़बान के अल्फाज भी हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कोई रूमी ज़बान, कोई दूसरी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। कुरान मजीद में जब वो अल्लाह का कलाम बन गया तो वो अरबी बन गया, वो अरबी हो गया। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की राय ये है कि रूमी ज़बान के कुछ कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद हैं। रूमी ज़बान के कुछ कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद हैं और दूसरी ज़बानों के भी मौजूद हैं। और सही बात यह है कि तरादुफ़ लुगात एक इस्तिलाह है कि एक लफ्ज़ कई ज़बानों में मुस्तअमल हो। अब जैसे तन्नूर का लफ्ज़ है, ये उर्दू में भी बोला जाता है, कुरान में भी अल्लाह फरमा रहे फारत तन्नूर, तो तन्नूर का लफ्ज़ अरबी भी है, वो हिंदी भी है, वो फारसी भी है। तो ऐसा हो सकता है कि एक लफ्ज़ कई ज़बानों के अंदर हो। बहरहाल ये एक मसले की तरफ इशारा किया और फिर फरमाया अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर। ये भी अरबी एक तहक़ीक़ है कि क़िस्त का लफ्ज़ जब मुजर्रद में बोला जाता है तो वो जुल्म के माना में होता है, अम्मल क़ासितून फ़कानू ली जहन्नम हतबा। और जब ये मज़ीद फ़ी में चला जाता है बाब फ़आल के अंदर तो ये अदल व इंसाफ के माना में होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो अल्लाह ने व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त में फरमाया तो फरमाया कि ये क़िस्त मस्दरुल मुक़सित है का मतलब यही है कि ये मस्दरुल मस्दर है। तो बहरहाल ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो जुल्म के माना में भी इस्तेमाल होता है और जब मज़ीद फ़ी में चला जाए तो उलमा समझते हैं अदल के माना में भी इस्तेमाल होता है। इस सिलसिले में एक वाक़या हज़रत सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह जो बहुत बड़े ताबिई थे, हज्जाज इब्न यूसुफ को जालिम कहा करते थे, तो हज्जाज ने उनके कत्ल का इरादा कर लिया। इतने उसने उलमा शहीद किए थे, लेकिन ये आखिर तक हक बात से नहीं फिरे, आखिर तक हक बात से नहीं फिरे। तो जो कत्ल करने वाले लोग थे उन्होंने एक दफ़ा आखिर में उनसे सवाल कर लिया कि आप बतलाइए हज्जाज के बारे में आपकी क्या राय है। तो सईद इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह ने फरमाया क़ासितुन आदिलुन, क़ासितुन आदिलुन। तो ये भागे भागे दौड़े दौड़े गए कि भाई वो तो आपकी तारीफ कर रहा है। हज्जाज से कहा कि सईद इब्न जुबैर तो आपको क़ासित भी कह रहे हैं, आपको आदिल भी कह रहे हैं। तो हज़रत सईद इब्न जुबैर के इस जुमले को हज्जाज तो बहुत बड़ा आलिम भी था, उसने कहा नहीं, मुझे क़ासित कहा है लेकिन अम्मल क़ासितून फ़कानू ली जहन्नम हतबा का आदिल के माना में नहीं कहा, जालिम के माना में कहा है। और आदिल भी जो कहा बलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, तो आदिल के एक माना मुशरिक के भी आते हैं। तो उसने मुझे जहन्नमी और मुशरिक कहा है, उड़ाओ उसकी गर्दन। तो बहरहाल हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह फरमा रहे हैं इसकी तहक़ीक़ में ये एक जुमला था जो मैंने अर्ज़ कर दिया। इसके बाद हदीस पेश की है और अपने उस्ताद अहमद इब्न इश्काब और अशकाब दोनों पढ़ सकते हैं, उसकी रिवायत पेश की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जैसे मैंने अर्ज़ किया हज़ारों उलमा से हदीस हासिल की, ये सबसे आखिरी उस्ताद थे अहमद इब्न इश्काब। तो बुखारी शरीफ में भी जो उन्होंने आखिरी हदीस नकल की वो अहमद इब्न इश्काब की नकल की, बावजूद कि ये गरीब है अपनी सनद के एतबार से। इशारा इस बात की तरफ कि ये मेरी ज़िंदगी के असातिज़ा की अहादीस
में से जो आखिरी हदीस, आखिरी उस्ताद की आखिरी हदीस जो है वो अहमद इब्न इश्काब की है, उसको नकल कर रहे हैं। हद्दसना मुहम्मद इब्न फुदैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सकीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कलिमतान, ये कलिमे का लफ्ज़ अरबी में इसम, फ़ेल, हर्फ और जुमला सब पर बोला जाता है। शेखुल हिंद रहीमहुल्लाह के ज़माने में एक ईसाई पादरी ने मुनाज़रे का ऐलान किया और उसकी दलील क्या थी कि ईसा कलीमतुल्लाह है, ईसा कलीमतुल्लाह। शेखुल हिंद ने कहा कोई मसला नहीं, सबको जमा कर लिया। अब उसने कहा इसका क्या जवाब है, ईसा कलीमतुल्लाह है कि नहीं है? तो शेखुल हिंद ने उससे कहा पहले ये बतला कि कलीमे का इतलाक इसम पर भी है, फ़ैल पर भी है, हर्फ पर भी है, तो जो तू कलीमतुल्लाह कह रहा है उससे क्या मुराद है? तो उसकी बीवी ने कहा भाई तू हार गया और वो मुनाजरा शेखुल हिंद जीत गए। तो कलीमतान से मुराद यहाँ पर कलाम है, दो जुमले ऐसे हैं जो हबीबतानी इलर रहमान, जो रहमान को महबूब हैं, रहमान को महबूब है। क्या मतलब? इसके पढ़ने वाले को अल्लाह अपना महबूब बना लेते हैं। और अल्लाह के महबूब बनाने का मतलब क्या होता है? महब्बतुल्लाहि लिइबादिही का मतलब क्या होता है? अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लामा माज़री रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के किसी बंदे से मोहब्बत करने का मतलब ये है अल्लाह उसको नेकियों का अजर देंगे, उसको गुनाहों की सज़ा से महफूज फरमा लेंगे और अल्लाह उसको उसकी इताअत पर इस्तिक़ामत अता करेंगे। तो अल्लाह के महबूब बनने का मतलब इंशाअल्लाह जब इताअत पर इस्तिक़ामत है तो जो ये जुमले कसरत से पढ़ेगा अल्लाह का महबूब बन जाएगा, इंशाअल्लाह उसका खातिमा ईमान पर होगा। अब जब अल्लाह के महबूब हैं ये दो जुमले तो बज़ाहिर वहम होता है कि ज़बान पर भी बहुत भारी होंगे। फरमाया खफीफतानी अलल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, कोई फ़िल भी इसमें नहीं, जुमला इस्मिया है। अब ज़बान पर हल्के हैं तो शायद मीज़ान अदल में भी हल्के हों। फरमाया नहीं, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान अदल में भारी है। और ये सकीलतान के लफ्ज़ से तर्जुमतुल बाब जो इमाम बुखारी का दावा है अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बराए रास्त अमाल का भी वज़न होगा, अक़वाल का भी वज़न होगा कि अल्लाह के नबी की हदीस कह रही है कि इन दो जुमलों का बराए रास्त वज़न होगा और ये वज़नी होंगे, और वह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सब साथी मेरे साथ इसको 3 दफ़ा पढ़ ले भाई, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अब मेरे दोस्तों, किताबुद्दावात में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस की एक और फजीलत जिक्र की और उसमें सिर्फ इतना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, मन क़ाल सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही मिअत मर्रतिन, जो 100 मरतबा रोज़ाना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लेगा, हुत्तत खतायाहु व इन कान मिथल ज़बदिल बहर, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह उसके गुनाह धो डालेंगे। अब इन दो जुमलों की क्या ऐसी फजीलत है? पहले तो हमें इसका तर्जुमा पता होना चाहिए। सुबहान अल्लाह का मतलब मैं अल्लाह को हर ऐब से पाक करता हूँ, उनज़्ज़िहुल्लाह तआला तंज़ीहा, उसब्बिहुल्लाह तआला तस्बीहा, मैं अल्लाह को हर ऐब से पाक करता हूँ। और मेरे दोस्तों, कुरान कह रहा इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करती है। ए इंसानों, तुम समझते नहीं हो, ये हवाओं का चलना, ये बादलों का गरजना, ये समंदरों का मौजे मारना, ये फूलों की महक, ये चांद की चांदनी, ये सूरज की किरणें, ये क्या है? ये अल्लाह की तस्बीह है। अगर एक इंसान दिन में 100 मरतबा भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही न पढ़ सका तो क्या हुआ? क्या हुआ मेरे दोस्तों? वो जानवर से बदतर हो गया, वो पहाड़ों से नीचे हो गया, वो समंदरों से कम हो गया, उसकी कीमत दरख्तों से कम हो गई, इसलिए कि वो सब सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते हैं और आज हमारे पास वक्त नहीं है। तो आज नियत कीजिए इंशाअल्लाह रोजाना 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। और अगर ये तस्बीह फजर की 2 सुन्नतों और फर्ज के दरमियान हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुफलिस सहाबी से फरमाया
मुफलिस सहाबी सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह भी साथ मिला ले तो फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह तुझे गनी कर देगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह इस तस्बीह के अहतमाम की भी हमें तौफीक नसीब फरमाए। तो व बिहम्दिही का मतलब सुब्हानल्लाह का मैंने अर्ज किया, अल्लाह को हम हर ऐब से पाक कर रहे हैं। इसे कहा जाता है सिफात जलाल। और अल्लाह के लिए हर अच्छी सिफत को साबित करना, बिहम्दिही का मतलब मुतलब्बिसन बिहम्दिही, मेरी ये तस्बीह अल्लाह की तारीफ के साथ मिली हुई है कि अल्लाह तमाम अच्छी तारीफात की जामिअ ज़ात है। तो ये अल्लाह के लिए सिफात कमाल को साबित करना। और सिफात जलाल और सिफात कमाल जब बंदा दोनों का एहतमाम अल्लाह के लिए कर देता है, और अल्लाह के आपको मालूम है सिफाती नाम कितने ज्यादा हैं, जब ये छोटा सा जुमला पढ़ लिया तो अल्लाह के तमाम सिफाती नाम, चाहे वो जलाली हो चाहे वो जमाली हो, जिसके आखिरी आयत जिस पर दलालत कर रही है सूरतुर रहमान की, तबारक अस्मु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम। दिल जलाल का मतलब अल्लाह की ज़ात सिफात सल्बी वाली भी है, अल्लाह की ज़ात सिफात तारीफ की सिफात की भी अहल है। तो सिफात जलाली और सिफात इस्बाती जितनी भी हैं, जब इंसान उन दोनों का मजमुआ कर लेता है तो उससे उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कायम हो जाती है। जब अल्लाह का नाम लेंगे और इन दोनों सिफात के साथ करेंगे, हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमहुल्लाह का ये जुमला आपको सुना के बस अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फरमाया कि इस जुमले की तासीर ये है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही से इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कायम होगी। और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का जो जुमला है ये अल्लाह की अज़मत और खौफ पर दलालत करता है, इससे अल्लाह का खौफ दिल में कायम होगा। और मोमिन की शान यही है कि उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भी भरा हो, ताकि नेकियां उसके लिए आसान हो। रातों की ठंडक में उठकर तहज्जुद के लंबे लंबे सजदे उसके लिए आसान हो, अल्लाह के सामने आहोजारी करना उसके लिए आसान हो। हुकूकुल इबाद में अच्छे अखलाक, जिसका कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजन होगा, ये दुनिया वालों की मोहब्बत हमें उस पर नहीं उभारेगी, अल्लाह की मोहब्बत उस पर उभारेगी। और दूसरी शान ये है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, हर गुनाह से अपने को बचाने वाला हो। और जब ये खौफ और मोहब्बत दोनों जमा हो जाते, इसका नाम खशियत है, जो उलमा की शान अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहे, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि जो उलमा हैं वो अल्लाह से खशियत करते हैं, यानी अल्लाह से मोहब्बत का भी हक अदा करते हैं और अल्लाह से डरने का भी हक अदा करते हैं। अब एक सवाल जो अहम है कि बहुत से उलमा ऐसे नहीं होते, और दूसरा सवाल बहुत सी आवाम, हमारे बहुत से सूफी तबलीग में जाते हैं माशाल्लाह, वो मैं अपने इन तलबा से कभी कहता हूँ कि वो आपसे तहज्जुद में नमाजों में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुरान तो कह रहा है कि उलमा के दिल में खशियत होती है। तो मौलाना शबली थानवी रहमहुल्लाह ने इसका बेहतरीन जवाब दिया कि उलमा का मतलब अल्लाह की अजमत के कायलीन जो हैं, जो अपने दिल में अल्लाह की अजमत को जानते हैं, वो असल उलमा हैं, जिनके दिल में खौफ भी है और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी है, यही असल उलमा है। अब अगर अल्लाह की अजमत का इल्म एक आमी शख्स को हो जाए तो अल्लाह की अजमत का आलिम है, अगर वो एक हकीकी आलिम के पास नहीं तो अल्लाह की अजमत से जाहिल है। तो भाई अल्लाह हम सबको हकीकी उलमा में शामिल फरमाए, इल्म नाफे अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और जाते जाते भाई मैं इन सब तलबा को जो आज अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो दरस निज़ामी से फारिग हो रहे हों, चाहे तखस्सुस फ़िक़्ह से फारिग हो रहे हों, चाहे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हो गए, मैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि एक तो अपनी निस्बत को इंशाअल्लाह पहचानना है कि आज से जो हाफिज़ बन गए उनको अल्लाह ने अपना नाम दे दिया, अल्लाह भी हाफिज़ और ये हाफिज़ कुरान हो गए। आज से जो आलिम बन गए, ये अल्लाह ने अम्बिया के विरासत का उन्हें नाइब बना दिया। तो अल्लाह भाई इन उलमा को, इन मुफ्ती हजरात को, इन हुफ़ाज़ को अपनी निस्बतों की लाज रखने की तौफीक नसीब फरमाए। और उनके ये माँ बाप और सरपरस्त बहुत मुबारक हैं, उन्हें अल्लाह ने चुना है, उनके बच्चों को चुना है। और हमारे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हमारे दादा जान ने उन्हें पूरी कोशिश की कि किसी तरह डॉक्टर बना दें,
किसी तरह डॉक्टर बना। हर साल फरमाते थे कि बेटा 1 साल बस और पढ़ लो, 1 साल और पढ़ लो। लेकिन हर साल हमारे वालिद साहब फरमाते थे नहीं मुझे हाफिज बनना है, नहीं मुझे आलिम बनना है। तो एक ज़माने में हमारे वालिद साहब फरमाते रायविंड से उलमा अकाबिरीन उस ज़माने के तशरीफ़ लाए, वालिद साहब उनको अपने घर ले गए। तो उन अकाबिरीन ने हमारे दादा से एक बात कही हमारे वालिद साहब के बारे में, फरमाया कि अल्लाह जब किसी से खुश होता है ना, किसी माँ बाप से खुश होता है, तो उसकी औलाद को दुनिया की कोई नेमत देने के बजाय दीन की और इल्म की नेमत दे देता है। फिर फरमाया आपकी कोई नेकी ऐसी है, हमारे दादा से फरमाया कि अल्लाह ने आपके बेटे को इस इल्म के लिए कबूल कर लिया है, इसका शौक़ है, इसको करने दो। तो भाई अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे वालिद मोहतरम जो इस इदारे के बानी भी थे, हमारे भी उस्ताद थे, सैकड़ों उलमा के उस्ताद थे, अल्लाह उनको आज के दिन और ता क़यामत सुबह क़यामत हरान हर घड़ी अल्लाह उनको अपनी क़ब्र में करवट करवट राहतें नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जितने अकाबिरीन मशाइख़ बुजुर्गान दीन जो दुनिया से रुखसत हो गए, आज हम उनके नाम तो नहीं ले सकते, बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन दो दावत नामों में आपने देखा हमारे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो फरमाया करते थे कि मैं रातों की तन्हाइयों के खुसूसी लम्हात में तुम्हारे इस मदरसे के लिए दुआ करता हूँ। आज मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि उनकी रूह भी बहुत खुश हो रही होगी। हज़रत मौलाना उनके साहबजादे डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद और भी जो हमारे असातिज़ा मशाइख़ ता क़यामत जो फैज़ जारी होगा, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उन सब के लिए, ख़ास तौर पर हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के लिए, तमाम सहाबा के लिए, हमारे इस इदारे को, इन तुलबा के पढ़ने पढ़ाने को सदक़ा जारिया फरमाए। और जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो तशरीफ़ आज लाए हैं, सबको उनकी आमद पर मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।